showdown over vote chori reached a flashpoint today in the national capital as the opposition MPs staged a march against the centre over the allegations of vote rigging. The Delhi police detained protesting India Bloc MPs as they were leading a march from the Parliament House to the Election Commission of India headquarters against the special intensive revision of the electoral rolls in Bihar and alleged malpractices in the elections. Now, the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, was leading the protest march from Makardwar in the Parliament to the ECI office, and as they proceeded from the Parliament House, they were stopped by the police who had erected barricades, while some MPs, including the TMC's Mahua Moitra and Samajwadi Party's Akhilesh Yadav, were seen climbing the barricades. Others, including Priyanka Gandhi and Mallikarjun Kharge, began a sit-in protest at the site. So dramatic visuals were also witnessed as the protest took an ugly turn. Many of the MPs were also halted by the police officials who said that they cannot proceed any further because the EC has made it clear that a delegation of only 20 people can meet the EC officials. वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सर एक बात उधर वाले मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। सर वोट की जो बात कर रहे हैं समाजवादी क्लियर करना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए कि वोट के जो बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में लिख कर दीजिए अगर ये सारे। मैं रिटर्न में दे चुका हूँ, एफिडेविट दे चुका हूँ। आप केवल एक जिलाधिकारी को टर्मिनेट कर दीजिए बस। आपको सर ऐसा ही समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है? नहीं, हमको लड़ाई कराओगे तुम्हारा। अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल तुम्हारे मालिक को जानते हैं। हो गया हो गया। ये मीरापुर का चुनाव है जहाँ पर पुलिस ने वोट रोकने का काम किया और केवल यूपी में न जाने कितने वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया सरकार ने मिलकर के। अभी हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए, और इस देशद्रोह में जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है, और इसका निर्णायक फैसला ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। Well, we had already announced this march. So march had to take place. All opposition party, entire opposition bloc is here. And they are not being allowed to go to the election commission. We want to give a memorandum to them. So they can easily, we should be allowed to go there and hand over the memorandum to them. But they are not letting that. In the morning, they realize the situation is serious. So they have given an appointment of 30 people. And the position is so big, 30 people cannot, justify. So we want all prominent. So you wanted to put out a message, the opposition parties are together on the issue of SIR, the indications of vote chori. All entire opposition is together, entire India bloc is together, and we should be allowed to go to election commission. What we see is that the Karnataka CEO, Haryana CEO, they have all come out, they've asked Rahul Gandhi to come out with a proof, give it in oath. How do you see this, sir? The news channels, they have already investigated. And what few prominent news channels, they have gone to those places where in one room they are showing 80 voters. So fake voters have been made. So what is this exercise? ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई, और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है
तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। The Election Commission is being obtuse. Instead of dealing with the charges made by the leader of the opposition in a very responsible manner, they are hiding behind legal procedure and bureaucratic procedure. This is not expected from a constitutionally mandated authority which is given the authority to run free and fair elections in India. The faith in elections will go away by the behavior of the Election Commission, and we want to highlight many glaring inconsistencies in the and errors in the electoral rolls based on which the Election Commission is conducting elections in India. It is when the government has an overriding influence on the selection of the Chief Election Commissioner that you see the attitude of the Election Commission of India. Instead of providing with facts, and they're asking even for more substantive evidence from Rahul Gandhi when he has done a fantastic job in providing all this information, and the Election Commission, instead of countering, is still asking for more facts. जिस चुनाव आयोग का काम है फर्जीवाड़े को रोकना, फर्जीवाड़े का सबूत देने पर शपथ पत्र मांगते हैं। ये दिल्ली के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के लोग सबूतों को लेकर गए, आप शपथ पत्र मांगते हैं। चुनाव आयोग शपथ पत्र लिखकर देंगे कि अगर फर्जीवाड़ा सही पाया गया, शिकायतें सही पाया गया तो इस्तीफा देंगे या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए फर्जीवाड़े के आरोप में। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि वोटर लिस्ट सही हो। आप जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो शपथ पत्र मांगने लगते हैं, जब शपथ पत्र दिया जाता है तो आप खामोश हो जाते हैं। सीधा सा सवाल, नो बकवास। अगर शिकायतें सही पाई गई तो चुनाव आयोग इस्तीफा देंगे, फर्जीवाड़ा के आरोपियों के ऊपर केस चलेगा या वो बर्खास्त होंगे, ये सरकार और चुनाव आयोग बताए। देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आजादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से, मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने और सुनकर देश के लोकतंत्र को की जो हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसमें सहभागी और सह अभियुक्त न बने। The BJP has hit out at the opposition for creating ruckus and anarchy. It also questioned the India bloc for not filing an affidavit of their complaints and not having faith in the constitution. कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपके घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। All right, so this was the reaction that came in from the BJP that said that if the opposition feels there are issues with the Election Commission, then why not file a formal complaint? In fact, the BJP went on to say that this is anarchy.